Are there any specific reactions that that have meant a lot to you? And also with every film, the numbers seem to keep going up in terms of how much your films are making. Does that play on your mind every time numbers is not a game that I'm interested in. I'll be very honest, and I'll tell you why. Because if I think of all the films that I've seen, जो फिल्में मैंने देखी हैं, जो मुझे पसंद आई हैं, उनका मुझे क्या उनका कलेक्शन है मुझे पता है और ना मुझे इंटरेस्ट है। मैंने प्यासा मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे पता नहीं प्यासा का क्या कलेक्शन है और कम है या ज्यादा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यासा ने ज्यादा धंधा किया या तीसरी मंजिल ने ज्यादा धंधा किया मुझे पता नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट। अपना मदर इंडिया या मुगल आजम या दो आंखें 12 हाथ, ये जो सारी फिल्में हैं, ये जो हमारे दिल के इतने अजीज होती हैं, तो मुझे नंबर में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। Actually, I would say that if there is anyone that I am competing with, it is myself. And it is not that I don't consider Shah Rukh and Salman great actors. I think they are wonderful actors and they are good stars. Not only Shah Rukh and Salman, there are a host of other stars that we have. There's Akshay, there's Ajay, there's Hrithik, Ranveer. So many actors are there who are wonderful actors. But I don't consider any other person. I'm not a competitive person by nature. When I see somebody's good work, I love it. When I saw Sultan, I loved it. When I saw Dabangg, I loved it. When I saw Munna Bhai, I loved Sanju's work. So I am happy when I see my colleagues doing great work. It inspires me. When I see Ranveer's work or Ranveer's work, it really inspires me. Makes me happy. So I don't find myself competing with anybody. I'm only trying to compete with myself in the sense that even there I'm competing is a very strange word. I'm trying to better myself. I'm trying to learn. I'm trying to do better than I did earlier. As a creative person, as an artist, as a creative person, I'm trying to improve myself. So yes, I'm trying to do better than what I did earlier. As a creative person, not from the business point of view. Also, we've seen a lot of actors coming out openly and tweeting and saying good things about Dangal. Unfortunately, we haven't got the opportunity to ask Shah Rukh personally what he has to say about Dangal. Did he call you up? What sort of, or if he has called you up, what sort of reply he has said, or whatever he has said about it? No, actually, Shah Rukh didn't call me. Has he tweeted? I don't know. No, he hasn't. No, he has not. So I don't. Maybe he has not seen the film. I don't know. I've not got a message from him or a call. Amir, will we see you return back to the awards fold with Dangal, because you've also got a nomination for an award? So will Dangal actually make it? For me, Dangal has already got the biggest award. The way the audience has given the love to the film, ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। तो जो प्यार मिला इस फिल्म को, जो इज्जत मिली है, और जिस जज्बात से लोगों का इमोशन आया इस फिल्म की तरफ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। सर, वो तो रिवॉर्ड हो, इससे आगे का मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। सर, but are commercial awards of no value to you? I mean, no, they are of no value to me. हाय आमिर, इस पूरे फिल्म में एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? ये फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन आप अगर एक चुनने के लिए कहेंगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं 3 चुनूं? एक तो वो सीन जब बाप और बेटी के बीच में झगड़ा होता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। मुझे बबीता और गीता के सीन बड़े पसंद हैं, जो बबीता एक पिवटल रोल प्ले कर रही है गीता और बाप के बीच में। तो जिस तरह से सानिया ने काम किया है वो मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक मुझे जो रेसलिंग है वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी है। जो लास्ट जो तीनों फाइट हैं, जिस तरह से फातिमा ने फाइट किया है, वो तीनों फाइट्स ऐसे आई हैं और फातिमा ने ऐसा किया है कि मतलब आंख आप हटा नहीं सकते स्क्रीन से, इतना एक्साइटिंग उसने किया है। Yeah, I think these 3 scenes, or I would say. आमिर, इस फिल्म को सबने सर्वगुण संपन्न बताया है हर तरीके से।
और इस फिल्म से पैट्रियार्की भी रीडिफाइन हुई है कि हाँ, हम जो है वो अपने बच्चों में अगर कोई प्रतिभा महसूस करते हैं तो उनको उस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक। जी। तो इस किस्म की मतलब गाइडेंस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अपने बच्चों को कितना गाइड करना चाहिए या उन्हें कितना आजाद छोड़ना चाहिए? और मतलब दूसरा सवाल ये था इसके साथ मेरी जी, मैं एक सवाल पहले आपसे फिर आप दूसरा सवाल करिएगा। मुझे मेरी जो लगती फीलिंग्स हैं वो ये है कि मैं अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देता हूँ कि उनको क्या किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ हम सपोर्ट करें, जो भी उनको करना है वो हम सपोर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उनको गाइड भी नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते कि भाई आप, मुझे लगता है कि आपका एप्टीट्यूड इस चीज़ की तरफ है, आप इसको ट्राई करें, आप सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन फोर्स, माँ बाप को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये मेरा जाती फीलिंग्स है, मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि महावीर जो है उसका एक सपना था और उसने अपनी बच्चियों को उस सपने की तरफ एक तरह से ढकेला, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर गीता और बबीता में वो पैशन नहीं होता रेसलिंग के लिए तो वो इस ऊंचाई तक कभी पहुंचते ही नहीं। आप लाख धक्का दीजिए किसी को एक चीज की तरफ, अगर उसमें वो पैशन नहीं है तो वो वहां अचीव, वो उस चोटी पे पहुंच ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में भी वो पैशन था जो उन्होंने उठाया उस चीज को, जो बाप उनको सपोर्ट कर रहा था, जो बाप ने शुरू में उनको धकेला होगा उसकी तरफ, लेकिन उसके बाद लड़कियों ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपनी मेहनत से ही आदमी आगे जा सकता है। कोई आपको कितना भी धकेले, आपको खुद अपनी मेहनत से ही आप आगे जा सकते हो। तो ये इस फिल्म में तो मेरे हिसाब से दोनों है। The father did initially push the girls towards wrestling. He was very tough on them also, but it was their passion which they took it from him and took it further. जी। But personally, I don't believe in pushing children. मेरा ये personal feeling है कि, but चूंकि हम एक सच्ची कहानी बता रहे थे महावीर की, गीता की, बबीता की, तो मेरे जो personal feelings हैं वो उसमें नहीं आते। I have to follow the character. और हमें जो इस फिल्म की हर चीज से लोगों ने इत्तेफाक मतलब रखा, लेकिन इसमें जो नेशनल कोच थे गीता बबीता के, उनको एक तरीके से थोड़ा सा मतलब नेगेटिव किया गया। तो इस किस्म की कहानी में हम लोगों को सिनेमैटिक लिबर्टी की लक्ष्मण रेखा कहाँ तक खींचनी चाहिए? और देखिए, आप नोटिस किया होगा कि कोच का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल फिक्टिशियस कैरेक्टर, जो नाम कोच का है वो बिल्कुल फिक्टिशियस नाम, और वो हमने फिल्म की शुरुआत में भी ये बात कही है कि ये फिल्म के अंदर जो 3 किरदार हैं, महावीर, गीता और बबीता, इनकी कहानी है। बाकी जितने से किरदार हैं वो फिक्टिशियस है। आपको पता है कि उनका जो कजिन है, गीता बबीता का रियल कजिन, वो ओमकार नहीं है। उनके दरअसल 3-4 कजिन हैं जिनके साथ वो लड़ते थे, जिनके साथ उनका शुरू में उनके साथ कोचिंग करते थे, 3-4 कजिन हैं। तो वो 3-4 कैरेक्टर्स को मिला के नीतीश सर ने एक कैरेक्टर बना दिया, ओमकार। अब ये नाम भी जो है ओमकार, उनकी कोई भी रियल कजिन का नाम ओमकार नहीं, तो वो भी फिक्टिशियस कैरेक्टर देखा जाए। तो ऐसे इस तरह से कई कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर जो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं, और वो बात हमने फिल्म शुरू होने से पहले बड़ी सफाई से सबको बताई। अब जब आप फिल्म बना रहे हैं तो कुछ चीजें आपको चाहिए ड्रामा के लिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपको कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा बायोपिक में भी अक्सर हम देखते हैं कि आप बायोपिक, जो भी आप बायोपिक देखें, उसको बिगनिंग में आप देखेंगे कि सम लिबर्टीज हैव बीन टेकन टू ड्रामेटाइज द मोमेंट। तो वही हमने किया। So hi Amir, do you see a significant change in the way that people are reacting to movies on female empowerment in an otherwise patriarchal driven society, and what do you think that the audience connected with the most in this film? Well, it is really wonderful to see that films which are really progressive in their thinking has been lapped up so lovingly by audiences all across the country, in multiplexes, in single screens, in right from north to south, everywhere, east to west. So it's a unanimous reaction of the audience to a film like this. So it really, reinforces our belief in ourselves as a society, that yes, we appreciate this, and in a public
platform when we see something collectively together that this is what we feel. We agree with what the film is saying. So that is wonderful to see. You know, it's very, very reassuring to see that. I must add over here one thing, that remember that just because a film is progressive or it is talking about feminism, does not mean it will work with an audience. Meaning to say, what I'm trying to say by that is that the film has to be dramatically well written, well scripted, and then well shot and well made, and then even if it is about feminism or about any issue, like Dare Zameen was about learning disabilities or about childcare. So any issue that you take up, it has to be well communicated. Only then it will be received also well. So it's not merely takes on a social issue, it's also taking a social issue and communicating it well. That's the important part. ओके आमिर, मेरा सवाल आपसे है, दंगल को अब तक जो भी कामयाबी मिली है, कमर्शियली भी एक इतिहास रच दिया है फिल्म ने, सिर्फ आपकी फिल्में नहीं और पिछली भी कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कमर्शियली। और अगर इमोशनल लेवल पे बात करें तो आपने कई बार जिक्र किया कि दिल भराया। इतनी सारी कामयाबी मिलने के बाद कमर्शियली भी और एक इमोशनल लेवल पे जो आपको सुकून मिला है फिल्म की कामयाबी से, जैसे लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, क्या इस कामयाबी से इतने सारे प्यार से डर लगता है? बिकॉज अगर नेक्स्ट फिल्म लेके आते हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी, चाहे वो फिल्म क्रिटिक हो या सिनेमा देखने वाले। डू यू फील स्कैर्ड? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे खुशी होती है। मैं बिलीव करता हूँ कि वन मस्ट लिव इन द मोमेंट। तो इस मोमेंट में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को जो हमारा काम है वो इतना पसंद आ रहा है, जो पूरी टीम की एफर्ट है, जो लेखक ने कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, जो सारे एक्टरों ने काम किया है, टेक्नीशियंस ने काम किया है, प्रीतम अमिताभ का हर आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों को इतना पसंद आया। तो इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है। अगली फिल्म के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। और दूसरी चीज ये कि जब भी मैं कोई फिल्म चुनता हूँ तो मैं उस फिल्म को उस चीज के लिए चुनता हूँ कि उस फिल्म में क्या है जो मुझे पसंद आता है। वो कामयाब होगा या नहीं हो मुझे पता नहीं। तो मैं हर फिल्म में, अब देखिए अगर आप दंगल की बात करें तो मुझे तो सारे लोग कह रहे थे कि अरे दंगल आप बना रहे हो, सलमान की दंगल, अपना सलमान की सुल्तान आ चुकी है उसी टॉपिक पे, तो आपने तो दंगल बना, गलती कर रहे हो, आपकी फिल्म चलेगी। नंबर 1 सब लोग ये कहते थे। नंबर 2 ये कहते थे कि इसमें तो कोई रोमांस नहीं है, कोई आपका हीरो हीरोइन का कोई रोमांस नहीं है, इसमें बाप बेटी की कहानी है। तीसरा लोग मुझे कहते थे कि आप बूढ़े हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो फिल्म के अंदर, लोग आपको क्यों देखना चाहेंगे। तो इतनी चीजें थी इस फिल्म के अंदर, इस ऐसे स्पोर्ट के बारे में जो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, एटलीस्ट इन बिग सिटीज उनको नहीं पता है कि रेसलिंग में क्या है क्या नहीं। तो इतनी पॉइंट्स थी कि मतलब कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यार ये फिल्म जिसमें इतनी चीजें हैं जो कन्वेंशनल चीजों के खिलाफ जा रही हैं। गाने देख लीजिए आप, एक भी रोमांटिक गाना नहीं है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक, किसको पता था कि इतना सुपरहिट होगा गाना। तो हमने वो किया, सच्चाई से फिल्म के लिए जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो की। तो इसलिए मुझे जब मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अगली फिल्म के साथ सच्चाई करना चाहूँ, और फिर उसकी कामयाबी कितनी होगी वो हम देखेंगे। इस फिल्म की कामयाबी की वजह से मैं अगली फिल्म के लिए डरूंगा, ऐसा मुझ में नहीं होता। ओके आमिर, मेरा सवाल एक और सवाल मेरा, एक क्वेश्चन नशरुद्दीन शाह ने जब आपकी फिल्म मंगल पांडे आई थी उस वक्त कहा था कि बाल बढ़ा लेने से कोई मंगल पांडे नहीं बन जाता, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार किसी बायोपिक फिल्म की इतनी तारीफ की है, क्योंकि किसने नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीर साहब ने देखी दंगल? जी उन्होंने ट्वीट भी किया है। सॉरी, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे कहा है सर, उन्होंने तारीफ की है। तो अच्छा तो उनके रिएक्शन के बारे में क्या, क्योंकि नसीर साहब जल्दी उन्होंने भाग मिल्खा भाग को भी मुझे एप्रोप्रिएट बड़ी बायोपिक खुशी नहीं है माना कि नसीर साहब, क्योंकि एक्चुअली आप मैं बताऊं आपको, फिल्म की रिलीज से पहले मैंने कई फोन किए थे नसीर साहब से उनको फिल्म दिखाने के लिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं नसीर साहब का और मैं अपनी सारी फिल्में उनको दिखाता हूं और उनका रिएक्शन मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं क्योंकि मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बम्बई में थे नहीं उस वक्त, तो वो फिल्म देख नहीं पाए और मैं अभी यहाँ आ गया हूँ, तो
मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई। 2-3 दफा मैंने उनको टेक्स्ट किया था कि मैं आप जहाँ पर हैं मैं वहाँ अरेंज कर दूँ स्क्रीनिंग आपके लिए, तो उन्होंने नहीं मैं जाके खुद देख लूँगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं देख लूँगा। तो इसलिए उनके देखने के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अब आपने बताया कि वो देख चुके हैं तो अब मैं उनको फ़ोन करने वाला हूँ फौरन। और मुझे बड़ी खुशी है, आप बता रही हैं कि उनको फिल्म पसंद आई, मुझे बड़ी खुशी है। की बात करूँ या मल्टीप्लेक्स की बात करूँ, एक सीन फिल्म में आता है जहाँ पे जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया जाता है और लोग खड़े रहते हैं। हर जी। शो में लोग 2 बार खड़े हुए हैं, एक जो अमूमन खड़े होते हैं जो एज पर जी। रूल, और एक जज्बात में खड़े हुए हैं। क्या आपने किसी जी, जी। सिंगल स्क्रीन में जाके वो अनुभव किया? Did you went to some single Uh, screen, seen this, you know, the way इस people दफा love it? मैं- This is the first इस question. दफा मैं सिंगल स्क्रीन्स नहीं जा पाया ये रिएक्शन देखने के लिए, मतलब फिल्म का रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन जगह जगह से मुझे ये रिस्पांस आया है। हर आदमी जिसने फिल्म देखी है उसने मुझे ये टेक्स्ट किया है कि जब राष्ट्रीय गान बजता है इनमें तो हम खुद भी खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पूरा हॉल खड़ा हो जाता है। और वो मोमेंट ही ऐसा है कि वो नितिश जी ने जो मोमेंट लिखा है, वो एक तो वो मोमेंट में बहुत प्राइड है कि जब गीता जीतती है और हमारा नेशनल एंथम बजता है और हमारा झंडा ऊपर जाता है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है जो बहुत जिसको हम लफ्जों में शायद नहीं बयां कर पाए। एक बहुत ही एक सनसनी घूम जाती है हमारे जिस्म में, और उससे जो उसके साथ साथ जो नितिश जी ने स्क्रिप्ट में लिखा है कि महावीर जी को जो बाप है उनको पता चलता है नेशनल एंथम के फर्स्ट एक दो नोट सुन के कि मेरी बेटी जीती, तो वो फौरन खड़े हो जाते। तो वो भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट है कि बाप को इस तरह पता चलता कि ये तरीके से बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी जीत गई जब राष्ट्रगान बजता है। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो ये मतलब आई थिंक हर हिंदुस्तानी वैसे भी खड़ा होना चाहेगा नेशनल एंथम पे, और ये एक जज्बाती मोमेंट है, तो लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है, एक प्राइड आता है फिर देश के लिए। ओके आमिर, आपने शुरुआत में कहा कि मेरा कंपटीशन अपने आप से ही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने तो जब मैं आपको इससे पिछले सवाल में थोड़ा और मैं ऐड करूं, जब मैंने कहानी सुनी थी और जब नितिश जी ने मुझे बताया था स्क्रिप्ट के टाइम पे कि गीता जीती है और महावीर तो बंद है कमरे में, तो मुझे लगा कि यार ये तो कमरे में बंद है, ये तो गड़बड़ हुई है। लेकिन जब उन्होंने मुझे नरेट किया कि नेशनल एंथम शुरू होता है और दूर से आवाज आती है महावीर की कानों में कि नेशनल एंथम बज रहा है, और वो खड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि मेरी बेटी जीत गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। जब मैंने वो स्क्रिप्ट सुनी थी फर्स्ट टाइम, मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं इतना एक्साइट हो गया था वो सीन सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगा कि ये मतलब जिसको होता है डायरेक्टर्स टच, बहुत अच्छा लगा। नेशनल एंथम तो हम सबको हमारे मन में हमारे देश के लिए प्रेम है, हम सबके दिल में इज्जत है नेशनल एंथम के लिए, तो जाहिर है हम खड़े होंगे, हमको कोई कहे या ना कहे हम खड़े होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऑडियंस में ऐसे भी हों जिनको तकलीफ है, जो बहुत बूढ़े हों या उनके पैरों में तकलीफ है, वो खड़े ना हो पाए, लेकिन उनके मन में तो इज्जत है, उनके मन में तो इज्जत है देश के लिए और नेशनल एंथम के लिए। देशभक्ति थोपना सही, देशभक्ति थोपना सही है बात? देशभक्ति को थोपना सही जायज लगता है आपको? देखिए लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको अपने मन में सोचना है कि आपके मन में क्या थॉट्स हैं और आप देश के लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स।